اور یہاں کچھ بو ہو تو پھر بندے کو کچھ غیرت بھی آتی ہے اور بندے کو کچھ نظر بھی آتا ہے۔ آج تم ذاکر نائک کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہو اس کا جو ہدف ہے وہ کفار ہیں اور ان کی دعوت اور ان کا جو ہدف ہے وہ غیر مسلم۔ جب اس کا ہدف کفار ہیں تو پاکستان میں وہ کیا کرنے آ رہا ہے؟ کیا معاذ اللہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان نہیں ہے؟ ایک طرف تم یہ کہتے ہو، جب تم سے سوال کیا گیا تو جناب موصوف عمر صدیق صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ ایک بندے کو اردو ادا کرنے میں مشکل ہے، اس کی مادری زبان اور ہے، اور بات کو سمجھنے میں اور پھر اس کو سمجھانے میں کچھ دشواریاں ہوتی تو ذرا یہ جو بوڈ کاسٹ ہوا ہے جب دوبارہ سے اسے سوال کیا گیا، سب سے پہلے یزید کے مسئلے پہ میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ صحیح، ابھی پھر سے نہیں کنٹروورسی، ابھی بہت سے شیعہ میرے فین ہیں، آپ کیوں ان کو میرے سے دور لے کے آنا چاہتے ہیں؟ تمہیں اپنے بڑوں کی کتابیں یاد نہیں ہے؟ ذاکر نائک جس لباس میں ہوتا ہے کافروں کا لباس ہے۔ ذرا یہ فتاوی اہل حدیث دیکھیے، آنکھیں کھولیے، تم زہر کا پیالہ پی لو گے، مرتے مر جاؤ گے، قیامت تک تم اپنے اس ممدوح اس موصوف کا تم لباس سنت سے ثابت نہیں کر سکتے، تم اس کے نظریات کا دفاع کرنے بیٹھ گئے ہو۔ اور اگر تم اس کی طرف سے بطور وکیل بات کرنا چاہتے ہو تو میں حضرت قبلہ امام جلالی زید شاہ فقہ کا ایک ادنا سا خادم اور جلالی علماء کونسل پاکستان کا مرکزی صدر ہونے کی حیثیت سے تو ہم جناب کو ویلکم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین ذی وقار، خدا داد مملکت پاکستان جس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ جماعت مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں بحمد تعالی، چونکہ یہ پاکستان رب ذوالجلال کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ عنایت سے اور ہمارے اسلاف کی قربانیوں سے مرز وجود میں آیا، تو ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ہمارے اسلاف نے ہی اس کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان شروع سے ہی اس ملک پاکستان کی ساکھ کو کھوکھلا کرنے کے درپے ہیں اور اس کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی معاذ اللہ وہ بیخ کنی کرنے کے لحاظ سے شب و روز مصروف عمل ہیں۔ طرح طرح کے لبادے میں وہ نظر آتے ہیں۔ کل جو گاندھی کے ترانے پڑھ رہے تھے اور پھر پاکستان کی پے تک بننے کے لحاظ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر معاذ اللہ پاکستان کی پے بھی بن گئی تو ہماری داڑھی گدھے کی مونڈ سے مونڈ دی جائے، وہی آج سارے کے سارے یہ باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لحاظ سے ہم سے کوئی بڑا درد مند نہیں، ہم سے بڑا کوئی خیرخواہ نہیں اور ہم سے بڑا کوئی مخلص نہیں ہے، جبکہ ان کی ماضی کی تمام تر سرگرمیاں اس بات کی شاہد ہیں کہ وہ سارے کے سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہندوؤں کا ساتھ دینے والے اور گاندھی کے چیلوں میں وہ بیٹھنے والے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اس امن و آشتی کے عظیم گہوارے خدا داد مملکت پاکستان کی معاذ اللہ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کا ایک اور منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور بڑی سوچی سمجھی سازش سے یہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسے شخص کو اس ارض وطن اس ارض مقدس پہ مدعو کیا جا رہا ہے جو شخص گمراہ ہے، قرآن و سنت کا معاذ اللہ مخالف اور قرآن و سنت سے متصادم اپنے نظریات اور سوچ لانچ کرنے والا میر مراد ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، جس کی حالیہ دنوں میں آمد کے لحاظ سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس کی آمد پہ ان لوگوں کے ہاں خوشی کے نغمے پڑے جا رہے ہیں اور خوشی کے شامیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جن کے ہاں اسی ماہ ربیع الاول شریف کی مبارک سہانی پر نور پر کیف گھڑیوں میں اور بالخصوص وہ گھڑی کہ جس گھڑی کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو دیکھنا نصیب فرمایا اور اس کائنات کو بنانے کے لحاظ سے جس ذات کو رب ذوالجلال نے وجہ تخلیق کائنات ٹھہرایا وہ ہم سب کے آقا مولا امام الانبیاء سید الانبیاء اشرف الانبیاء تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم معصومیت جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات مقدسہ ہے، جن کی 12 ربیع النور شریف کو آمد ہوئی
जलवागरी हुई, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात की आमद पे, विलादत बसादत पे जिन लोगों के यहाँ सफ़े मातम बिछी थी, जिनके यहाँ शोक का समा था, वही सारे हजरात आज उसी गुमराह बददीन शख्स की आमद पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। अजीब तकसीम है और अल्लाह की बरगाह में हम इस तकसीम पे शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें अपने प्यारे महबूब और अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे आले सुन्नत व जमात को, मसलक हक को खुशी मनाने की तौफीक बख्शी है और उनको उस गुमराह बीन शख्स के आने पर खुशी मनाने की तूने तौफीक दी है। या अल्लाह हम तेरी इस तकसीम पे राजी हैं और हम तेरी बरगाह में सदा सजदे शुक्र अदा करते हैं। समीनी वक़ार, डॉक्टर जाकिर नाइक जिसके अकायद व नजरियात क्या हैं, सोशल मीडिया इंटरनेट पे उसके अकायद व नजरियात के लिहाज से जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम गुफ्तगू है वो बिल्कुल वायरल है, आप सुन सकते हैं। हमारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसल बशरियत के लिहाज से गुफ्तगू हो या कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात के लिहाज से वसीला पे मबनी गुफ्तगू हो या कि हमारे आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात के लिहाज से गुफ्तगू हो, इन सब अजमतो शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका मुतसादिम नजरिया, सोच, फिक्र ऑन द रिकॉर्ड नेट पर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। जिसका बिहम्दि ताला हजरत सय्यदी कंजुल उलमा बहरुल उलूम अजीम मुमताज मजहबी सकालर हजरत किबला मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुल कुद्सिया ने बारहा मरतबा उसकी बातिल सोच और बातिल नजरियात का कुरान और सुन्नत से यूं वाजे रद्द फरमाया है कि आज के दिन तक पूरी जुर्रियत आले हदीस, वहाबी जुर्रियत का कोई एक फर्द भी उस जाकिर नाइक की वकालत करते हुए हजरत सय्यदी कंजुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुल कुद्सिया की किसी एक दलील का भी रद्द नहीं कर सका और बिहम्दि ताला कयामत तक ये कर भी नहीं सकते। उसकी आमद पे हजरत सय्यदी कंजुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुल कुद्सिया ने उस जाकिर नाइक को मुनाजरे का चैलेंज किया है, वो हमसे मुनाजरा कर ले और अपने इन बातिल नजरियात का वो दिफा करे। अगर वो नहीं कर सकता फिर उसके जो फॉलोअर हैं, उसके जो हवारी हैं, जब वो पाकिस्तान में आए तो उसको हमारे सामने बिठा दें और वो हमारे साथ सबसे पहले बातचीत करे और अपने नजरियात को वो कुरान सुन्नत से साबित करे। हजरत सय्यदी कंजुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुल कुद्सिया की तरफ से जब ये मुनाजरे का चैलेंज दिया, वो बेचारे जो उसके आने पर खुशियां मना रहे थे और शामियाने बजा रहे थे, यानी पूरी जुर्रियत आले हदीस, उनके हाथ तो एक खुशी का समा था। अब वो सारे का सारा खुशी का समा सोग में बदल गया। इतनी आने पर खुशी नहीं थी जितनी उनके यहाँ आज सफ़े मातम बिछ गई है कि ये क्या हो गया, वो हमारे मेहमान थे, वो आ रहे थे, तो उनको तो मुनाजरे का चैलेंज कर दिया गया है। उन जुर्रियत आले हदीस में से एक मौसूफ जो अपने ही आले हदीसों में इस कदर मुतनाज़ा हैं, जिस पे आले हदीस जो उनके उलमा हैं उनकी तरफ से बिदअती और हदीस में मानवी तारीफ करने वाला ठहर चुका है। मेरी मुराद उमर सदीक नामी एक मौसूफ है। कुछ लोग हुसैनी हैं और कुछ लोग यजीदी की बरसगीर में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की तरफ से हो रही, और वो साहब हैं उमर सिद्दीक साहब। अहले हदीस अल्लाह की तौफीक से हुसैनी है, और बोलते नहीं हुसैनी है कि नहीं है कि ये तकसीम असल में रवाफिज की है, अहले तशय्यो की है। आप उनकी वीडियो देखें, हुसैनी शीयत और हुसैनी सुन्नी कि ये हुसैनियत है ये, और मुकाबले में यजीदियत है। यजीदियत जिस लिबादे में हो, अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान में हुसैनी जमात की है, हुसैनी मजहब की है, हुसैनी फिरके की है। कि इस तकसीम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दलील लेने की कोशिश की जा रही है। अना मिनल हुसैन वल हुसैन मिन्नी, इसका तर्जुमा और माना क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा
हुसैन मुझसे है और मैं हुसैनी हूँ। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैनी हूँ। तो फिर बोलो अल्लाह के नबी ने आख्या मैं हुसैनी हूँ। कि उमर सिद्दीक साहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अन्ना मिन हुसैन का तर्जुमा किया, मैं हुसैनी हूँ। इसलिए कई अहले इल्म हज़रात ने उमर सिद्दीक साहब की इसी बात को लेकर कहा है कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत का पहलू है, तनकीस का पहलू है। जो इससे कबल हजरत सय्यदी कंज़ुल दामत बरकातुल कुद्सिया की जात से, वो चाहे गुजरावाला की सरजमीन पे मदरसा नमरा, जो कि इन्हीं का मदरसा था, इन्हीं के घर में हजरत सय्यदी कंज़ुल दामत बरकातुल कुद्सिया ने जाकर इसके बड़ों को, वो तालिब रहमान हो, वो अब्दुल रशीद जल्लन हो या कोई और हो, और ये भी वहां मौजूद था, कई घंटों तक अपने कदमों तले रौंदा। और यूं कि इसी उमर सदीक के बाप अब्दुल रशीद जल्लन को बवासीर का मर्ज लाहिक हो गया, बार बार लेटरीन से बरामद होता रहा और बिल आखिर उसने हाथ खड़े कर दिए कि मैं मुनाजरा नहीं कर सकता। तालिब रहमान वहां मौजूद, ये उमर सदीक वहां मौजूद, नेट पे ये वीडियो आज भी मौजूद, अगर कोई देखना चाहे वो भी देखे, उमर सदीक भी देखे और इसके सारे हवारी और इसकी पूरी ज़ुर्रियत भी देखे और आंखें खोल कर देखें और सुने। जब हजरत सय्यदी कंज़ुल मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुल कुद्सिया बार बार ये कह रहे थे कि अब्दुल रशीद जल्लन अपनी शिकस्त लिख कर दे दे तो मैं अभी ही इन्हीं शराइत पे तालिब रहमान से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। इनमें से किसी एक को हिम्मत ना हो सकी कि हम अब्दुल रशीद जल्लन की जगह पे मुनाजरा करें। आज वही उमर सदीक कह रहा है कि जी मैं मुनाजरा के लिए तैयार हूं, मुझे बुलाएं, मैं बगैर सिक्योरिटी के आने के लिए तैयार हूं। तो बराए मेहरबानी आप जो है कुछ भी मुनाजरा के नाम पर खेल करना चाहते हैं तो आ जाए, हम आपके पास आने को तैयार, मैं खुद आने को तैयार हूँ, मेरी टीम आने को तैयार, बगैर किसी असलहा के, बगैर अफराद के, बगैर सिक्योरिटी के मैं आपके घर में आने के लिए तैयार हूँ, मुझे टाइम दे, बिस्मिल्लाह। बस यही गुजारिशात थी। मैं उमर सदीक को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर इतना भी आपके यहां शर्म का कोई मादा होता या गैरत नाम की इतनी भी कोई चीज होती ना, तो आप कैमरे के सामने बैठने से कबल चुल्लू भर पानी लेते और डूब के मर जाते। बंदे में कुछ शर्म, कुछ हया, कुछ गैरत नाम की कोई चीज होनी चाहिए। जिया बग्गा की सरजमीन आप भूल गए। मुनाज़िर कबीर शाहकार जलालियत हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने आपको 2015 में कि जब जिया बग्गा में आप आए और ये समझकर कि किबला मुफ्ती साहब अलैहि रहमा यहां नहीं है, मुनाज़िरे का चैलेंज किया ओपन स्पीकर में, तो तुम्हारे दौरान खिताब ही किबला मुफ्ती साहब अलैहि रहमा पहुंच चुके थे। फिर मस्जिद के दरवाजे बंद करवाए गए, ताले लगवाए गए और मस्जिद की पीछे वाली दीवार से सीढ़ी लगवाकर औरतों वाला बुरका पहनकर मौसूफ जनाब उमर सदीक साहब भागे थे। फिर मोटरसाइकिल में बैठकर तुम्हें कोई छोड़ने के लिए गया था, याद है कि वो भूल गए। जरा तन्हाई में बैठ के वो सारा मंजर सामने लाइएगा कि रात की तारीकी में बुरका पहनकर जिया बग्गा की सरजमीन से 2015 से कौन भागा और अब तक दोबारा जिया बग्गा की सरजमीन पे तुमने कदम नहीं रखा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से तुम रखोगे भी नहीं। अपनी नस्लों को भी ये वसीयत और नसीहत करके जाओगे कि दोबारा इमाम जलाली ज़िद शरफ हो के किसी शेर से पंजा आजमाई नहीं करना। और मैं उस उमर सदीक चूहे को भी कहना चाहता हूं जिसको यहां से भागे हुए 3 साल हो गए और बुर्का पहन के यहां से भागा और आज तक वापस नहीं आया। और मैं कहना चाहूंगा जिया बग्गा के भाभियों को कि अगर तुम में भी गैरत नाम की कोई चीज है तो इस चूहे को पकड़ के लाओ। पर उमर सिद्दीक को हम इस मौजूद में मुनाज़रा करना चाहते हैं। नारे तकबीर मुनाज़रे में मौजूद था और ये कमीना भी वहां लुका हुआ था, इसका अब्बा और दादा भी मौजूद था जिनको हमने बार बार बुलाया। 2006 के भागे हुए, फिर आज से 3 साल पहले 2015 को इसने समझा कि जलाली यहां पे मौजूद नहीं है और इन्होंने स्पीकर खोल के यहां पे बकवास की। हमने पकड़ा या नहीं पकड़ा? और बोलो कि ये भगे वालों, इनको भगाया कि नहीं भगाया? इन्होंने बुर्का पहना या नहीं पहना? ताले लगा के, पुलिस बुला के, बुर्के पहना के
भागने वाले आज के समूह पे बैठ के अपने बंद कमरे में कहता है मैंने डॉक्टर जलाली से मुनाजरा करना है, और कुत्ते मैं बाजू खड़ा करके तुझे बुला रहा हूँ, ये बंदे के बाबे जिंदा है, अभी मर नहीं गए, अगर अपने बाप के हैं तो तेरा मेरे फैमिली के साथ है। अच्छा जी, हाफिज उमर सिद्दीक भागते रहता है, कोई बात नहीं, ये भागना अल्लाह हमें बार बार मुबारक करे। हम भागते रहे, लोग अहले हदीस होते रहे, लोग कब्र परस्ती छोड़ते रहे, मैं कभी इन लफ्जों से नहीं घबराया, बस शिकस्त हो गई। ये देखो बंदे कितने अहले हदीस हुए, हार गए जी, हार गया। ये देखो बंदे कितने अहले हदीस हुए। उमर सिद्दीक की जो प्रोग्रेस है, कोई भी बरेलवी बड़े से बड़ा आलिम मुनाजिर मुहद्दिस मुफ्ती ले आए, वो भी अपनी प्रोग्रेस ले आए। मैंने कितने अहले हदीस किए हैं, हजारों, ज़ालिका मिन फज़लिल्लाही, और उन्होंने कितने बरेलवी किए। अमल बोलता है ना भाई, चलो मैं माना, मैं हारा, मैं भागा, मुझे शिकस्त हो गई। तो लिहाजा यूं गुफ्तगू करने से कबल अपने गिरबान में झांकिए और अपनी चारपाई के नीचे थोड़ा डंगोरा फेर लीजिए, ताकि तुम्हें कुछ न कुछ शर्म आ जाए, या आईना ही सामने रखकर अपनी शक्ल देख लीजिए। बाकी रहा जाकिर नायक, तो जाकिर नायक खुद अपने नजरियात का, बातिल सोच का और बातिल अफकार का वो खुद दिफा करे। अगर तुम उसके वकील बनकर मैदान में आना चाहते हो तो हम जनाब का वेलकम करते हैं, और जनाब को पूरा हम इंशाल्लाह आपका घर पूरा करेंगे, आप परेशान नहीं हो। तुम्हें वो भी मंजर याद होगा कि जब तुमने ऐवान इकबाल में बैठकर गीदड़ बबकियां मारी थी कि बड़ा इमाम जलाली ज़ीद शरफू ने अकीदे तौहीद आइम्मा हदीस सेमिनार करके तुम्हें और तुम्हारे अबाउ अजदाद को मुनाज़रे का चैलेंज किया था कि मेरे सैकड़ों शागिर्द ऐसे हैं जो बात करने के लिए तैयार हैं, और जिस फौर में बुलाओ वो आने के लिए तैयार हैं, और मसले के हक अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी साबित करने के लिए तैयार हैं। याद करें वो लोग जब 25 जनवरी को 2006 के तारीखी दिन में वहदत कॉलोनी गोजरावाला के गैर मुकल्लिदीन के मदरसा नमरा के अंदर बंदा नाचीज मुनाजरीन अहले सुन्नत के हमरा तकरीबन 3 घंटे तक अपने कदमों तले वहाबियत को रौंदता रहा। 3 घंटे तक उनके घर में जाकर हमने वहाबियत के छक्के छुड़ाए, और आज तक भी उसका कोई जवाब उनके पास मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं, मैंने 2000 से हाफिज सईद और साजिद मीर को ललकारना शुरू किया, आज की तारीख तक वो मेरे चैलेंज का जवाब न दे सके। मैंने उस दिन से जब मस्जिद मदरसा नमरा में अब्दुल रशीद जल्लन लैट्रीन में छुप गया था, जब अपने दारुल उलूम के अंदर उन्होंने बिजली बंद कर दी थी, जब ने वाज़े तौर पर मेरे सामने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा था एक मर्तबा हमारे मुनाजिरीन को छोड़ दो, मैं समझ गया अब इन कीड़े मकोड़ों से बात करना फजूल है। इस वास्ते मैंने उससे पहले भी उनको कहा, 11 नवंबर 2005 से लेकर 25 जनवरी 2006 तक मुसलसल ताक़ब के बाद वो अपने घर में पकड़े गए। मगर सीडी देख लो, वो अब्दुल रशीद जल्लन हो, तालिबुर रहमान हो, और यहां बैठ के बोलने वाले कीड़े मकोड़े जो यहां आए थे वो हो। हम उनके घर में रहे, और मौजूद था वहाबी ताइफा एक गुमराह ताइफा है। अपने मसलक की दलील क्यों ना बता सके, अपना हक क्यों ना वाज़े कर रहे। तब से लेकर अब तक तो जनाब की ऊंची सांस भी सुनाई नहीं दी, और अब जी जाकिर नायक की आमद पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो अपने नजरियात का दिफा खुद करे। तुम अगर उसका वकील बनकर आना चाहते हो तो हम वेलकम आपको कर रहे हैं। जरा ये क्लिप दे दीजिएगा कि मैं उसका बतौर वकील मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, और फिर उससे लिखवा लीजिए। अगर वो तुम्हें लिख कर नहीं देगा तो अपने किसी बड़े से लिखवा लीजिए, चाहे वो साजिद मीर हो जो 12 अक्टूबर 2017 को लाहौर प्रेस क्लब से भागा था, उससे लिखवा लीजिए। मगर उमर सिद्दीक साहब ये याद रखिएगा, तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत अहले हदीस जिस बंदे से खाइफ हैं वो बंदा हजरत सय्यदी कंज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली है, और जिस मर्द कलंदर के कुरान और सुन्नत के बराहीन और दलाइल से तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत, चाहे वो सऊदीया तक के तुम्हारे मुफ्ती हों, चाहे वो सऊदीया तक की हुकूमत हो, जिस बंदे के नाम से कामती है वो अल्लाह के फजल से हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम की खास नजर इनायत से हजरत सय्यदी कंज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल कुद्सिया की जात है। अगर अंदाजा ना हो
थोड़ा अंदाजा कर लीजिएगा, अंदाजा है बल्कि यकीन कामिल है, मगर शर्म नाम की कुछ चीज हो और यहाँ कुछ मुंह हो तो फिर बंदे को कुछ गैरत भी आती है और बंदे को कुछ नजर भी आता है। आज तुम जाकिर नाइक के हवाले से ये कह रहे हो कि जी चूंकि उसका जो हदफ है वो कुफ्फार हैं, तकाबुल अदयान पे वो बात करता है, तकाबुल मसालिक पे मेरे से बात करो। तो माहिर फन जो है वो माहिर फन से मुनाजरा करता है, वो तो तकाबुल अदियान के माहिर हैं और तकाबुल अदियान पर आप ला इल्म है। तो भाई अहले हदीस का मैं मुनाजिर हूँ, तकाबुल मसालिक पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। भाई डॉक्टर साहब जो है वो उम्मत के आलिम है और उनकी दावत और उनका जो हदफ है वो गैर मुस्लिम। जब उसका हदफ कुफ्फार है तो पाकिस्तान में वो क्या करने आ रहा है? क्या माज़अल्लाह पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान नहीं है? जब उसका हदफ कुफ्फार है तो फिर किसी काफिर मुल्क में जाए, वहां जाकर वो अपनी कुफरियात को बके। यहां आने का मकसद क्या है? एक तरफ तुम ये कहते हो, जब तुमसे सवाल किया गया कि जी उसने यजीद पलीद के लिहाज से यूं बात की है कि माज़अल्लाह रदियल्लाहु अन्हु और रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज उसने माज़अल्लाह यजीद के ये बोले और ये कहा कि जी ये दोनों शहजादों की जंग थी। तो जनाब मौसूफ उमर सदीक साहब फरमा रहे थे कि सब सोशल मीडिया पे एक चीज एक इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना वो अहले बैत खास तौर पे यार ये बात इस्तेमाल करते हैं, ये पास नहीं जाना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है कि एक बंदे को उर्दू अदा करने में मुश्किल है, उसकी मादरी जुबान और है, उसकी दावत जो है वो इंग्लिश जुबान में है और बात को समझने में और फिर उसको समझाने में कुछ दुश्वारियां होती, लफ्जों के साथ एक जाल बुनना और उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा जो है वो नशर करना, ये बड़ा मजमूम तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी रहा डॉक्टर जाकिर नाइक की सफाई देती हुई कि यजीद के लिहाज से ये कहना कि चूंकि उसकी उर्दू जुबान नहीं है वो ये नहीं कहना चाह रहा था, वो कहना चाह रहा था। तो जरा ये जो ब्रॉडकास्ट हुआ है एक उसके अंदर जो उसने गुफ्तगू की है, जब दोबारा से उससे सवाल किया गया तो उसके अंदर भी वो कह रहा है कि मैं राफजियों को नाराज नहीं करना चाहता। मतलब क्या है कि मौकिफ आज भी मेरा वही है, मगर मैं दोबारा से वो मौकिफ जब बयान करता हूं तो राफजी मुझसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि मेरी फॉलोइंग काफी है। सबसे पहले यजीद के मसले पे मैं लाना चाह रहा हूँ आपको कि इस पे बहुत डिस्कस हुआ और आपका भी क्लिप आया कि शिया हजरात मेरे फ़ैन और मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन वो गिला करना शुरू हो गए, नाराज़ होना शुरू हो गए मुझसे कि ये क्या कह दिया आपने। तो ये ज़रा क्लेरिफाई करें, आपने दो शहजादों की जंग कहा करबला को और यजीद, इसमें क्या था आपका या क्या मकसद है, ये ज़रा क्लेरिफाई करें इस चीज़ को। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका है और कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। अगर वन लाइनर इसको अभी ये वापस से लेके आएंगे, मैं जवाब फिर से दूंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं। अभी ये मुद्दा आ गया, ये मुद्दा को पूरा जवाब दिया, हर एक को जवाब दिया, ये खत्म हो गया। अभी 2007 का काम था। हाँ, अभी आप पूछे 17 साल बाद मैं बेवकूफ़ जवाब दूंगा आप इससे, आपको देखने का यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। जरूरी का नादिर से सुने, सही सकते मैं जवाब फिर से दे सकता हूँ। एग्री ये बेवकूफ़ी है क्योंकि वो मुद्दा खत्म हो गया। अभी इट इज़ नॉट एट ऑल डीलिंग विद एनीथिंग ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम। अभी फिर से नहीं कॉन्ट्रोवर्सी। अभी बहुत से शिया मेरे फैन हैं, आप क्यों उनको मेरे से दूर लेके आना चाहते हैं? अल्लाह ना करे, मैं लोग क्या होता है आपका शो ज़्यादा देखेंगे। अभी फिर से नहीं कॉन्ट्रोवर्सी। अभी बहुत से शिया मेरे फैन हैं, आप क्यों उनको मेरे से दूर लेके आना चाहते हैं? अल्लाह ना करे, मैं लोग क्या होता है आपका शो ज़्यादा देखेंगे। तो लिहाजा उस डॉक्टर जाकिर नाइक का आज भी वही मौकिफ है, चूंकि उसकी जुबान उर्दू है नहीं और यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले सारे अच्छी तरह उर्दू समझने वाले नहीं है, फिर वो यहाँ आकर क्या समझाएगा, अपना मौकिफ कैसे बताएगा? तुम्हारे नजदीक तो वो इंग्लिश बोलने वाला है, तुम्हें इतनी खबर नहीं है कि अपने बड़ों की किताबें याद नहीं है। जाकिर नाइक जिस लिबास में होता है तुम्हारे बड़ों के नजदीक तो वो काफिरों का लिबास है। ये जो पैंट शर्ट है ये तो काफिरों का लिबास है। जरा ये फतावा अहले हदीस देखिए, आंखें खोलिए। अगर तुम पर हम इतना कहें कि तुम अपने इस ममदू और इस मौसूफ का लिबास सुन्नत से साबित करो, तुम जहर का प्याला पी लोगे, मरते मर जाओगे कयामत तक। तुम अपने इस ममदू इस मौसूफ का तुम लिबास सुन्नत से साबित नहीं कर सकते, तुम उसके नजरियात का दिफा करने बैठ गए हो। एक तरफ तुम कहते हो कि मैं हुसैनी हूं, मैं यजीद का मुखालिफ हूं, यजीद फासिक था, फाजिर था, वो पलीद था, बिल यकीन उसने बड़े जुल्म ढाए आले बैत अतार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मुक़द्दस ज़वात कुदसिया पे। दूसरी तरफ तुम उसी शख्स उसी के तुम मद्दाह ठहर रहे हो जो यजीद पलीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता है, यजीद पलीद को रज़ियल्लाहु अन्हु कहता है माज़अल्लाह, और यजीद के लिहाज से कहता है ये दोनों शहजादों की जंग थी। आपने ही गिरबान में झांको और जरा चुल्लू भर पानी लेके डूब के मर जाओ। और जी डॉक्टर जाकिर नाइक की दावत पे हजारों लोग दर इस्लाम में दाखिल हुए हैं और जलाली साहब की गुफ्तगू पे और दावत पे और मनहज पे तो किसी ने इनको नहीं माना, बल्कि इनके मुखालिफ हैं, इनको अपने छोड़ गए। माशाल्लाह तबारक व तआला, इनकी दावत से तो इनके मनहज से इनके अपने इनको छोड़ गए। और डॉक्टर साहब
की दावत से बेगानों ने इस्लाम को कबूल किया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा उमर सदीक, अगर तुम में रत्ती भर भी गैरत होती ना, ये बात ना करते। तुम्हारे घर के उलमा इमाम जलाली की गुफ्तगू को सुनकर, अकीदत हुई सेमिनार सुनकर सुनी हुए। सिर्फ 5 तनख्वाह की निस्बत से मैं 5 उलमा के नाम पेश कर रहा हूं। सबसे पहले हजरत मौलाना मोहम्मद उमर फारूक तौहीदी, साबका आले हदीस, गुजरावाला के रहने वाले। उमर सदीक साहब अच्छी तरह जानते हैं ना इनको। ये वही उमर फारूक तौहीदी साहब हैं जिनको जनाब ने उमर फारूक तूर, जो कि तुम्हारे नाज़मी आला है तामीरात मसाजिद के, जो तुम्हें सऊदीया से फंडिंग आती है, और वो मोहम्मद बिन सलमान क्या फरमाते हैं वो भी आप सुन सकते हैं कि हमने अंग्रेज के कहने पे अहले हदीसों को प्रमोट किया और इनके मराकज और इनकी मसाजिद हमने तामीर की हैं। तो तुम्हारे पाकिस्तान में गुजरावाला के जो नाज़मी आला हैं वो उमर फारूक तूर साहब, जो कि उमर फारूक तौहीदी साहब के बहनोई हैं। जनाब उमर सदीक साहब, जनाब ने ही उमर फारूक तूर साहब से उमर फारूक तौहीदी साहब को कॉल करवाई थी ना कि आप वापस आ जाइए, हम आपको मदरसा बना के देते हैं, हम आपको मस्जिद बनवा के देते हैं, मकान बनवा के देते हैं, लिहाजा दोबारा से अहले सुन्नत को छोड़ के, बरेलवी मसलक को छोड़ के अहले हदीस हो जाइए। जनाब को याद है जब फोन कॉल करवाई थी और उमर फारूक तूर ये कह रहा था कि मेरे साथ ही उमर सदीक साहब भी बैठे हुए हैं, कि भूल गए। और दोबारा फिर जब शेरावाला बाग के सामने सिगरेट और पान वाली दुकान पे रात को 1 बजे तुम्हारी और उमर फारूक तौहीदी साहब की मुलाकात हुई थी, जनाब पान खरीद रहे थे, फिर ये कहा था कि जनाब उमर फारूक तौहीदी साहब क्या सोचा है जो हमने आपको ऑफर दी थी, क्या ये सारी बातें भूल गए? इमाम जलाली ज़िद शरफू ने तुम्हारे घर के उलमा अपने कुरान सुन्नत के दलाइल से तोड़े। हजरत मौलाना उमर फारूक तौहीदी जलाली साहब गुजरावाला की सरजमीन से, हजरत मौलाना मोहम्मद हमजा जावेद जलाली साहब गुजरावाला की सरजमीन से, हजरत मौलाना मोहम्मद असगर भुटवी रेनाला खुर्द उकाड़ा की सरजमीन से, हजरत मौलाना अताउर रहमान साकिब जलाली रिजवी साहब कुसूर की सरजमीन से, और हजरत मौलाना अब्दुल हफीज बुखारी जलाली साहब लाहौर की सरजमीन से। ये 5 वो आपके उलमा हैं जो साबिका अहले हदीस हैं, और इस वक्त अल्लाह के फजल से हजरत किबला इमाम जलाली ज़िद शरफू के वाज़ो बयान और कुरान सुन्नत से दलाइल को सुनकर ये सुन्नी हुए हैं, और मसलक रजा, मसलक अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को उन्होंने कबूल किया है। तो लिहाजा अपने घर की तलाशी लीजिए। तुम्हारे में इतना दम खम नहीं कि तुम किबला इमाम जलाली ज़िद शरफू की किसी एक दलील का रद्द करो। अकीदत वही सेमिनार तुम पर कर्ज है, गैबाना नमाज जनाजा तुम पर कर्ज है, और इमाम जलाली ज़िद शरफू की जात ने जो तुम पर कर्ज छोड़ा है, सऊदीया तक तुम्हारे मुफ्ती एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, एक दलील का रद्द नहीं कर सके। और इस तरह तुम्हारी ये गीदड़ बबकियां, इससे तुम्हारी अपनी जाहिल अवाम तो खुश हो सकती है, बल्कि तुम्हारी अपनी हैसियत भी क्या है, तुम्हारे अपने मुफ्ती, तुम्हारे अपने उलमा तुम्हें क्या कहते हैं और तुम्हें सटई से उतार देते हैं। अपनी हैसियत चेक करें, अपनी गुफ्तगू चेक करें, कैसी गुफ्तगू करते हैं। और अगर तुम उसकी तरफ से बतौर वकील बात करना चाहते हो तो मैं हजरत किबला इमाम जलाली ज़िद शरफू का एक अदना सा खादिम और जिलाली उलमा कौंसिल पाकिस्तान का मरकजी सदर होने की हैसियत से तो हम जनाब को वेलकम करते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक के जो मौकिफ या जो नजरियात, जो सोच है, उसका दिफा आप करेंगे, और हजरत किबला इमाम जलाली ज़िद शरफू का यह खादिम आले सुन्नत व जमात का मसलक हनफी बरेलवी मसलक साबित करेगा कि अल्लाह के फजल से कल भी सच्चा मसलक आले सुन्नत था, आज भी सच्चा मसलक आले सुन्नत है। और आप इसकी तैयारी करिए।